Hello students, now in the admission of a new partner, we have done up till sum number 10, sum number 11, sum number 12 and sum number 13. These three sums are in homework. In the sum number 13, one new point is there, that is of current account, but that is included in the sum number 14. So we solve sum number 14. Right, so 11, 12 and 13 that are in homework. Now read the sum number 14, that Ruthvi and Princey are partner sharing PLL in the ratio of 5:3. The balance sheet of their firm as on is as under. See, balance sheet is given. Now we tick mark the adjustment first of all. Manan will bring personal furniture of 75,000 as capital. So this is a new partner. They admitted Manan as a new partner. तो इसकी एंट्री नहीं होगी, राइट. आगे, आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेएबल टू मनन विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. मनन जो है वो क्रेडिटर्स ले लेता है. दैट आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेएबल टू, सो मनन टेक्स द क्रेडिटर्स. मनन अभी क्रेडिटर्स पे करेगा एंड दैट अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल. नाउ Manan will bring 1/5 share in future. So Manan का new ratio, that is 1/5, by giving 1/5 that Manan is admitted into the business. Manan will bring 45,000 as goodwill in cash. Manan जो है वो 45,000 ला रहा है, बट उसका वह शेयर दिया है, इसलिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल कितना लाना था. Goodwill of the firm is valued at 3 lakhs. Goodwill is 3 lakhs. Then capital purchase of rupees 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account, but it is included in closing stock. Right, so here closing stock here included in closing stock is given, right. तो इसका हम एडजस्टमेंट में सॉल्व करेंगे जब भी आएगा तभी. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000. सो टिक मार्क ऑन स्टॉक. ये रहा स्टॉक, टिक मार्क ऑन दिस. Liability of workman compensation is 28,000. So tick mark on workman compensation. ये रहा, tick mark on this. Then accrued interest on investment. So tick mark on investment. Right. Now first step is to prepare all the specimen. Here we prepare revaluation, partners current account because current account is given. Partners current account, bank account. Why bank account? Because here bank balance is given, that's why bank account. Then after, new balance sheet. First of all, always start recording ये capital balances, current balances and then bank balance, right. देख लें. See, current account by balance brought down. Ruthvi's 1,50,000, Prince's 1,95,000. Then we record balance brought down of bank, that is always on debit side 60,000, right. ये दोनों लिख दिया. कैपिटल becomes fix. सो कैपिटल दोनों का, रुत्वी का 1,20,000, प्रिंसी का 90,000, मनन का बाद में, राइट. नाउ वी स्टार्ट ट्रांसफरिंग बैलेंस शीट, old balance sheet into the new balance sheet. First of all, bank account is recorded. Then after, debtors are given, so write down debtors. No tick mark on this, no tick mark on this. So debtor write down as it is stock. Stock write down inner side, right, that is 60,000. Leave one line and draw the line. Then after, building as it is, no tick mark. Investment, इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ नोट. ये जो है ये वाला एक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, इसका आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, इसलिए ये एज इट इज़ एसेट साइड, राइट. ये लिख देना. देन आफ्टर, करंट लायबिलिटी साइड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. दिस इज़ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट. सो ऑन लायबिलिटी साइड राइट डाउन 30,000 आउटर साइड. Creditors write down inner side, leave one line and draw the line. Workman compensation reserve, right. Workman compensation reserve, this is also inner side, leave one line and draw the line. तो देखो ये record हो गया, right. Okay, now we solve adjustments.
बिफोर एडजस्टमेंट वर्किंग ये रहा वर्किंग ऋत्वी प्रिंसी एंड मनन देयर ओल्ड रेशियो इज 5:3 so say here new ratio is not given so old ratio is sacrificing ratio so 5:3 right now Manan will bring personal furniture of 75,000 as capital and second one that is out of creditor 60,000 are payable to Manan 60,000 जो है मनन को पे करना है विच इज़ ट्रांसफ़र टू इस कैपिटल अकाउंट मतलब मनन को पे करने हैं 60,000 तो वो सीधे इसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाता है सो दी 60,000 ऑल्सो बिकम्स हिज कैपिटल तो हिज कैपिटल बिकम 75,000 फर्नीचर 60,000 कैश सो 1,35,000 इतना हो रहा है राइट नाउ वी फाइंड आउट गुडविल तो गुडविल ऑफ मनन तो फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ मनन दैट इज़ 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर राइट सो 3 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1/5 दैट कम 60,000 बट मनन ब्रिंग्स ओनली 45,000 एज कैश इनटू द गुडविल राइट एज cash as goodwill into the firm so 60,000 minus 45,000 comes 15,000 तो ये 15,000 वो नहीं ला रहा है तो जो नहीं ला रहा है वो अपने करंट अकाउंट में से देगा कैपिटल हो तो कैपिटल में से देगा करंट हो तो करंट में से देगा तो एंड दिस ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000 to Ruthvi's current account 9,375 to Princess current account 5,625 इसका पोस्टिंग होगा मनन्स करंट अकाउंट में ये दोनों फिर रुथवी प्रिंसी क्रेडिट साइड डेबिट में क्रेडिट साइड रिवर्स डेबिट का रिवर्स साइड मनन तो देख ले पोस्टिंग दिस इज़ आवर करंट अकाउंट तो सी तो सी इसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड रिवर्स नेम तो मनन्स अकाउंट रुथवी में 9,375 प्रिंसी में 3,625 यहाँ से करंट अकाउंट में मैंने 2 ओल्ड पार्टनर्स का ही मैंने कॉलम बनाया है न्यू पार्टनर्स कॉलम इज़ नॉट टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज देर इज़ नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ new partners in the current account so I have not prepared and you also do not prepare because इसका opening balance ही नहीं है right okay now अभी ये मनन्स करंट अकाउंट डेबिट एक तो कॉलम बनाया नहीं तो कहाँ लिखे तो लिखेंगे इधर एसेट साइड मनन्स करंट अकाउंट 15,000 दिस बिकम्स हिज एसेट हमको इसको देना पड़ेगा 15,000 दिस इज एसेट 15,000 दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर राइट कि जब भी न्यू करंट अकाउंट दिया हो तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंस इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड right so now 15,000 working is over now what about this 15,000 so he brings as goodwill तो इसका एंट्री लिखे कैश अकाउंट डेबिट 45,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 45,000 देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 45,000 इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नाउ वी डू पोस्टिंग कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट तो ये बैंक अकाउंट डेबिट से रिवर्स नेम प्रीमियम फॉर गुडविल एंड यहाँ पे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और अमाउंट राइट ओके सो पॉइंट ऑफ गुडविल इज ओवर हियर सो फर्स्ट सेकंड देन थर्ड यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स वाला है आउट ऑफ क्रेडिटर्स 60,000 पेड बाय मनन को दे देते हैं तो क्रेडिटर्स उतने कम हो जाए तो लेस फ्रॉम द क्रेडिटर्स 60,000 सो आउटर साइड वी राइट डाउन 60,000 then after up to 5th point is over now the next point credit purchase of 15,000 which is not recorded in creditors account right and purchase account but it included in closing stock now see here credit purchase of 15,000 which is not recorded in 15,000 जो क्रेडिट परचेज वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे राइट सो फर्स्ट इफेक्ट
On liability side, addition in the creditors and second effect will pass in the revaluation account debit side. तो सी यहाँ पे 60,000 एज इट इज़ इनर साइड बिकॉज ये एडिशन आ गया. सो unrecorded purchase 15,000, so outer side 75,000, and this entry purchase revaluation account, purchase account debit side 15,000, right? Next, market value of stock 45,000 is 36,000. 45,000 का जो स्टॉक था उसकी वैल्यू है 36,000. सो देर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 9,000, राइट? सो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड स्टॉक 9,000 एंड हियर ऑल्सो स्टॉक में से लेस करेंगे -9,000 डिक्रीज, राइट? समझ में आई है? 45,000 स्टॉक की कीमत है 36,000. सो बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस ही हो रहा है 9,000 का. सो रिवैल्यूएशन डेबिट, सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम द स्टॉक. लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 28,000. तो लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड according to the adjustment 25,000, that is 28,000 is a liability. Now workman compensation reserve, workman compensation reserve 60,000 is given. From this 60,000, 28,000 that is